students, today we are going to solve the exercise of unit number 8, stopping by woods on a snowy evening. Comprehension questions I have sent you. Now we will do some exercise questions. Some statements are directly supported by the poem, some are inference based on evidence from the text, while some are supported by an evidence. Put a tick in the right column. क्या है कि कुछ यहाँ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं जो कि डायरेक्टली पोइम से हैं या तो कुछ जो हैं सपोर्टेड बाय द एविडेंस, सिर्फ एविडेंस के बेस पे दी हुई हैं और कुछ इन्फ्रेंस की हुई हैं, सिर्फ फ़र्ज़ की हुई हैं. ठीक है, तो लेट स्टार्ट. देयर आर 3 कॉलम्स. डायरेक्टली सपोर्टेड है, इन्फ्रेंस बेस्ड है. इन्फ्रेंस पे एविडेंस ही होता है. ठीक है, और स्टेटमेंट नॉट सपोर्टेड बाय द एविडेंस. और दूसरा एक ऐसा है जो जिसको ऐसी स्टेटमेंट जिसको कोई किसी किस्म की एविडेंस सपोर्ट नहीं करी कि ये पोइम से रिलेट करी है या नहीं करी. नंबर 1, इट इज़ अ कोल्ड एंड डार्क विंटर, सो इट इज़ डायरेक्टली सपोर्टेड बाय द पोइम. यू हैव टू टेक दिस कॉलम. नंबर 2, द स्पीकर नोज द ओनर ऑफ द वुड्स, so this is also directly supported to the poem. Next page, we'll turn the next page. Okay, the speaker feels guilty, so it is inference based from some evidence from the poem. No, this one is third statement, not supported by the evidence, क्योंकि कहीं भी पोएम में ये चीज़ नहीं आ रही कि पोएट वॉज या स्पीकर जो है फील्स गिल्टी अबाउट द स्टॉपिंग, कि वो गिल्टी फील कर रहा था. तो डेफिनेटली ही वॉज एन्जॉइंग. The speaker thinks about this commitment and restart his journey. The speaker thinks about, yes, he thought about his commitments and then he restart his journey. So this is inference based on some evidence from the poem. Then the speaker is tired and wants to rest. Supported, ये ऐसा कुछ भी स्पीकर ने नहीं बताया कि वो टायर्ड था और कुछ रेस्ट चाहता था. So this is supported statement, not supported any evidence. The horse feels strange because he stopped in the woods just to enjoy the beauty of nature. The horse feels strange to stop unexpectedly. Yes, horse was feeling strange. Number 1, directly supported by the poem. The speaker appreciated the beauty of the nature. Yes, the speaker, he was enjoying the beauty of nature and he appreciated. Okay, column number C, underline the C section. Next part, underline the words and phrases that depicted clear imagery in the poem. So what is an imagery? First of all, we just want to read some detail about imagery. Imagery is the construction of details used to create mental images in the mind of the reader. So poet ऐसा imagery के concept ऐसा create करता है कि किसी भी चीज़ की डिटेल इस तरह से यूज़ करता है कि रीडर के माइंड में एक इमेज क्रिएट हो जाए थ्रू द विजुअल सीन एज वेल एज सीन ऑफ टच, सेंस, स्मेल और साउंड. मीन्स सारी सेंसेस उसमें यूज़ हो रही हैं. ठीक है, इमेजरी क्या है कि जिसमें सारी सेंसेस यूज़ हो रही हैं. एग्जाम्पल क्या है? अंडरलाइन द वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट डिपिक्टेड द क्लियर इमेजरी इन द पोएम. सो व्हाट वाज द क्लियर इमेजरी इन द पोएम? व्हाट यू हैव टू डू, you have to read the poem and you have to point out the imagery. You have to point out the imagery in the poem. For example, to watch his words fill up with snow. To watch his words fill up with snow. So this is an imagery, and you can say between the woods and the frozen lake, the darkest evening of the year. Between the woods and the frozen lake, the darkest evening of the year. This is also giving a sense of imagery of easy wind and downy flake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. ये भी एक imagery है जिसमें sense यूज़ हो रहे हैं. ठीक है, senses आपके जिसमें senses यूज़ हो रहे हैं. Now let's do the other. Identify alliteration and metaphor in the poem. What is alliteration? Alliteration क्या है? Alliteration is sound. For example, keep, sleep. These sounds are called alliteration. Repetition of same sound. Repetition of same sounds are called alliteration. ठीक है, अब आपने
अपने पोइम में रेपिटेशन ढूंढनी है कि कहाँ पे साउंड यूज़ हो रही है ऐसी, जैसे शेक, मिस्टेक, ठीक है, स्वीप, साउंड, साउंड, स्वीप। पहला साउंड जो है, फर्स्ट साउंड वो, और दूसरी साउंड जो रिपीट हो रही है, डार्क एंड डीप, डार्क एंड डीप, दिस इज आल्सो कॉल्ड एलिटेशन, ठीक है। और साउंड स्वीप, दिस इज आल्सो कॉल्ड एलिटेशन, सो दिस इज कॉल्ड एलिटेशन। एलिटेशन क्या है? रेपिटेशन ऑफ द सेम साउंड। हियर वी कैन रीड this example of alliteration as alliteration refers to the repetition of same consonant sound। consonant कौन से होते हैं? कुछ vowels होते हैं और बाकी जो हैं जैसे ए आई ओ यू vowels हैं, बाकी सब letters consonants हैं। whose woods, with the first W and second W, it means they are giving you same sound। his house, first the consonants, repetition of the consonants and sound, that is called C, stopping, C or sweep। मैंने वो भी आपको जो बताया, stop and sweep। now what you have to do, paraphrase the following, paraphrase, I have given you the paraphrase and metaphor in the poem। so what is metaphor? metaphor क्या है? you have to read the, what you have to read about the definition of metaphor। मेटाफर क्या है? हम ऑलरेडी मेटाफर कर चुके हैं अपनी प्रीवियस पोइम में। जैसे सिमिली में एज यूज़ करते हैं और मेटाफर में एज का यूज़ नहीं होता, मेटाफर में एज का यूज़ नहीं होता। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, यहाँ पे जो स्लीप है उसको किससे रिजेंबल किया गया है? डेथ से, लेकिन एज का वर्ड यूज़ नहीं किया गया। सो लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोइम्स आर कॉल्ड मेटाफर। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, दिस इज द मेटाफर इन द पोएम। द पोइट हैज़ यूज्ड द वर्ड स्लीप ओवर हेयर, इज गोइंग टू, किस चीज़ को रिजेंबल कर रहा है या किस चीज़ को ये पॉइंट आउट कर रहा है या किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है? टू द डेथ, स्लीप और डेथ को। तो एज उसने यूज़ नहीं किया, ठीक है, एज यूज़ नहीं किया। जैसे फॉर एग्जांपल द ऑपोजिट ऑफ वाटर इज़ फायर नॉट स्नो, वाटर इज़ फायर नॉट स्नो, बट इट इज़ नॉट गिवन। सो अकॉर्डिंग टू दिस टेबल, स्नो इज ऑपोजिट ऑफ वाटर, ओके, ठीक है। आई हैव टोल्ड यू के पोएट हैज़ यूज्ड लास्ट टू लाइन्स, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, दिस इज दीज टू लाइन्स, इसमें मेटाफर यूज़ किया गया है, स्लीप को डेथ से रिलेट किया गया है। नाउ लेट्स स्टार्ट अनदर कॉलम। हियर आर सम ऑपोजिट मीनिंग्स विच द कॉलम्स, विलेज, ओके, यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं, विलेज है, स्टॉपिंग है, स्नो है, फ्रोजन है, डार्केस्ट है, साउंड है, डाउनी है, डीप है। तो विलेज को किसके साथ किया गया है? सिटी। विलेज किसका ऑपोजिट है? सिटी का ऑपोजिट कॉलम करना है। स्टॉपिंग, मूविंग, स्नो, स्नो का क्या है? वाटर, स्नो का वाटर, फ्रोजन, मेल्ट, डार्केस्ट, ब्राइटेस्ट, साउंड, साइलेंस, डाउनी, हार्ड, डाउनी मीन्स सॉफ्ट एंड हार्ड, डीप, शैलो, डीप, शैलो, ठीक है। नेक्स्ट वन, सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। द पोइम इज सजेस्टिव और प्रोफाउंड थॉट अबाउट, प्रोफाउंड थॉट कौन सी होती हैं? डीप थॉट्स, ठीक है। सजेस्टिव क्या? गिविंग यू सम सजेशन, इट इज़ नॉट गिविंग अ सजेशन, ये कोई सजेशन नहीं दे रही। अ सेंस ऑफ वुड इन विंटर, रियलिटी ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो साउंड पोइम किसके बारे में बात करी है? पोइट किसके बारे में? रियलिटी ऑफ लाइफ एंड डेथ के बारे में, ठीक है। आ सॉन्ग ऑफ एन्जॉयमेंट, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। Okay, the poem presents a conflict between poet and his friend, obligations to life and desires to escape from them. So part B, because इसमें obligations of life है और desire to escape from them के poet ने अपनी duties और obligations को कुछ टाइम के लिए neglect किया था और नेचर की ब्यूटी को enjoy करना चाहता था। तो ह्यूमन बीइंग भी लाइफ में अपनी obligation या ड्यूटी से escape चाहता है, या हार्डशिप्स कह सकते हैं, लाइफ की हार्डशिप से escape चाहता है। After reading the poem, we feel fed up of the life, wish to sleep for a long time,
get ready to face the challenges of life. So we get ready to face the challenges of life, that everybody has some responsibilities, so he has to fulfill. और challenges है लाइफ में, हर किसी के सामने challenge होता है और उसको fulfill करना होता है. The poem conveys to us only a surface meaning, profound thought, no meaning at all. So profound meaning दे रहा है B part. B part का deep thoughts है. जो poem हमें convey करी है that is profound thought. Dark would symbolize, किस चीज़ को symbolize करें? Death and departure to another world. किस चीज़ को symbolize करें कि death और फिर departure to another world. कि दूसरी word जिसके लिए death एक दूसरी वर्ड है और डिपार्चर में अंदर वर्ड दूसरी वर्ड में दाखिला है, क्योंकि एक डार्क वुड्स थे, नोबडी नोज के वुड्स के दूसरी तरफ क्या है. ठीक है. नाउ कम टू द ग्रामर सेक्शन. एडजेक्टिव फ्रेज. एडजेक्टिव फ्रेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव. ठीक है. एडजेक्टिव फ्रेज क्या है? कैसा फ्रेज जिसमें एडजेक्टिव को फर्दर एक्सप्लेन किया गया है. एडजेक्टिव क्या होता है? क्वालिटी ऑफ नाउन. सो आई लाइक टू सी अ स्माइलिंग फेस. एडजेक्टिव. स्माइलिंग फेस क्या है? स्माइलिंग इसमें एडजेक्टिव है, क्वालिटी है फेस की. ठीक है. ना फेस एज अ नाउन यूज़ हो रहा है. आई लाइक टू सी अ स्माइलिंग फेस. सो आई लाइक टू सी अ फेस विद अ स्माइल ऑन इट. सो एडजेक्टिव को एज अ फ्रेज विद अ स्माइल, जो यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है विद अ स्माइल, दैट इज़ कॉल्ड एन एडजेक्टिव फ्रेज. एडवर्ब फ्रेज भी आगे कर लेते हैं. एन एडवर्ब फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब. एडवर्ब के तौर पे जो एडवर्ब क्या है? नाउन की जो क्वालिटी है उसको फर्दर जो इन्हेंस करा होता है. एडवर्ब फ्रेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज द वर्क ऑफ एडवर्ब. एडवर्ब क्या है? फर्स्ट यू शुड नो व्हाट इज़ एन एडवर्ब. अली रैन क्विकली. तो अली क्या है? कौन सा काम क्विकली करता है? रैन. क्विकली बेसिकली एडवर्ब है इसमें. ठीक है. और अली रैन एट ग्रेट स्पीड. अब क्विकली को जो फर्दर एक्सप्लेन कर रहा है वो क्या कर रहा है? ये एडवर्ब फ्रेज. क्विकली के बजाय कोई फ्रेज यूज़ करना. फ्रेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज नॉट हैव अ, यू कैन से वर्ब. इसमें वर्ब नहीं होता है सच. सो एट ग्रेट स्पीड. ग्रेट स्पीड यहाँ पे एडवर्ब है. एडवर्ब क्या है? वर्ब को फर्दर एक्सप्लेन कर रहा होता है. किसी फर्दर एक्सप्लेन कर रहा होता है वर्ब. किसी भी सेंटेंस को में वर्ब को फर्दर एक्सप्लेन करना, दैट इज़ कॉल्ड एडवर्ब. सो come over here, replace each of the following underlined adjective phrases by an adjective. He wore a turban made of silk. So he wore a turban made of silk. अब आपने यहाँ पे क्या करना है? He wore a silk turban. He wore a silk turban. He is a man without a friend. He is a lonely man. तो यहाँ पे phrases यूज हुए हैं, आपने इनको सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में करना है. He is a lonely man. Nobody likes a person with bad temper. Nobody likes a person with bad temper. Nobody likes an aggressive person. Nobody like a mad person. It is of no use. It is useless. It is of no use. It is useless. He is a man of senses. He is a sensible man. ये आपका हो गया एडजेक्टिव फ्रेज वाला. नाउ कम्स टुवर्ड्स द एडवर्ब फ्रेज. लास्ट एक्सरसाइज है द पिजन फ्लाइज स्विफ्टली. द पिजन फ्लाइज एट ग्रेट स्पीड. अब हमने इसको एडवर्ब फ्रेजेस में कन्वर्ट करना है. ठीक है. जो अभी हमने किया है कि वर्ब को फर्दर इन्हांस करना. एडवर्ब क्या है? वर्ब को फर्दर इन्हांस कर रहा होता है, एक्सप्लेन कर रहा होता है. द पिजन फ्लाइज एट ग्रेट स्पीड. ही बिल्ड हिज हाउस देयर. ही बिल्ड हिज हाउस एट दैट प्लेस. देयर को अब हम क्या कहेंगे? एट दैट प्लेस. ही टाइड हार्ड. ही टाइड एज मच ही कैन हिज बेस्ट. ही ट्राइड हार्ड. उसने बहुत कोशिश की. ही ट्राइड एज मच एज ही कैन. हार्ड की जगह हम क्या यूज़ करेंगे? एज मच एज ही कैन. ही स्पोक एलोक्वेंटली. ही स्पोक विद ग्रेट एलोक्वेंस. ही स्पोक विद ग्रेट एलोक्वेंस. डिड सारा बिहेव वेल. डिड सारा बिहेव इन अ गुड वे. इन अ गुड वे. डिड सारा बिहेव इन अ गुड वे. ही स्पोक एलोक्वेंटली. ही स्पोक विद ग्रेट एलोक्वेंस. ठीक है. ये आपकी एक्सरसाइजेज यहाँ कंप्लीट हो गई हैं. ओके क्लास बस 9th ने जो राइटिंग स्किल्स करनी है उसमें क्या है कि देयर इज़ अ कंपैरिजन ऑफ सिटी एंड कंट्री लाइफ. सिटी लाइफ क्या है? शहर की ज़िंदगी. एंड कंट्री लाइफ क्या है? गांव की ज़िंदगी. ठीक है. तो सिटी लाइफ के एडवांटेजेस आपने लिखने हैं और डिसएडवांटेजेस. कंट्री लाइफ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज. यू आर सपोज टू राइट अ पैराग्राफ. आपने पैराग्राफ लिखना है. यहाँ पे तो आपको ऐसे कहा गया है, बट नो ऐसे.
because in your syllabus it is included paragraphs, so you are going to just write about a few advantages and disadvantages of city life. Write a paragraph जिसमें आपने लिखना है कि although city life and country life both have their own advantage, they have their own importance, but city life have the advantages that city life has maybe country life don't have, and the disadvantages the city life have that कंट्री लाइफ के डिसएडवांटेजेस और दोनों के आपने कम से कम 3 पॉइंट्स या 2 पॉइंट्स में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। एंड में कंक्लूजन देना है कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अपनी जगह, लेकिन दोनों की लाइफ की इंपॉर्टेंस अपनी जगह। यू आर जस्ट 9th क्लास, यू आर सपोज टू राइट अ पैराग्राफ। अब आपने ये पैराग्राफ राइटिंग खुद करनी है। यू कैन रीड अ पैराग्राफ फ्रॉम योर ग्रामर बुक, अदरवाइज यू कैन मेक योर सम फ्यू पॉइंट्स फ्रॉम योर सेल्फ। ठीक है, थैंक यू सो मच।